ہیں آج خدا کا کلام جو ہے وہ ہم کیونکہ 8 مارچ جو ہے خواتین کا دن ہے، انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے، تو ہم جو ہیں آج خواتین کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، خواتین کے دن کے حوالے سے آج ہم خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے عورتوں کو ٹریٹ کیا، یا خداوند نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح نے عورتوں کو کس نظر سے دیکھا، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح سے عورتوں کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے تاکہ ہم یہ جانیں کہ عورت جس کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے، خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو کتنا مقام اور رتبہ دیا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے آج جو ہے وہ شروع کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ جتنے لوگ بھی ہمارے اس کلام کو سنیں، دیکھیں، اس کو پورا سنیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ خدا یسوع مسیح نے کس طرح سے جو ہے خواتین سے جو ہے وہ کلام کیا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ خدمت نہیں کر سکتی، خواتین جو ہیں وہ آگے نہیں آ سکتی۔ بہت سارے خواتین عورتوں کو جو باہر پبلک میں کام کرتی ہیں ان کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا نے جو ہے عورت کو بھی وہی مقام دیا ہے جو مرد کو دیا ہے۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اب متی کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے، اس میں یوں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کے 19 باب میں، اور اس کی ہم 4 آیت سے پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ یہ میں نے آیات تو ساری پڑھی ہیں، لیکن ہمارا جو مین جو ہے ٹاپک وہ یہیں تک ہے کہ جس نے انہیں مرد عورت بنا کر کہا کہ مطلب ہمیں یہاں پہ جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے مرد عورت دونوں کو پیدا کیا۔ اور ہم اگر پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو جو ہے اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ خدا نے دونوں کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ شبیہ کا مطلب کیا ہے۔ شبیہ کا مطلب بہت وسیع مطلب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شبیہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنا پاک روح ہمارے اندر رکھا۔ تو شبیہ سے مطلب ہم نے ایک دفعہ اس پہ بات کی تھی کہ شبیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے، جو اس کی قوت ارادی ہے، جو اس کے ایموشنز ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کی مطلب جو ہے رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی احساس ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں خدا نے انسان کے اندر جو ہیں اپنی صفات جو ہیں انسان کے اندر خدا نے رکھی ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری صفات خدا باپ میں، خدا بیٹے میں، خدا روح القدس میں، تینوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہی تینوں جو ان کی صفات تھی وہی خدا نے انسان کے اندر بھی رکھی، کہ فرض شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے کاموں کا جو ہے وہ ذمہ لینا اگر ہم غلط کام کریں گے، اور سیلف کانشیس جو ہے، ہم نے بتایا تھا کہ سیلف کانشیس جو ہے انسان کی جو اپنی پہچان ہے، باغ عدن میں جو گناہ سرزد ہوا تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ خدا نے جو نیکی اور بدی کے درخت کے پھل کھانے سے جو منع کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سیلف کانشیس، کہ انسان جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو انسان پہچانے کہ اس کے اندر کیا ابیلٹیز ہیں، نیکی اور بدی کی اس کو پہچان ہو جائے، اچھائی اور برائی کو وہ جاننا کر دے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ خدا نے جس طرح سے مرد کے اندر وہی صفات رکھی، اسی طرح سے وہ ساری صفات خدا نے عورت کے اندر بھی رکھی۔ اس لیے خدا یسوع سے جو ہے عورت کو ہمیشہ سے جو ہے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جتنا مرد جو ہے ویلیویبل ہے، اتنی عورت بھی جو ہے وہ ویلیویبل ہے خدا یسوع مسیح کی نظر میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب تک زمین پر رہے، پیدائش سے لے کر جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے جانے تک، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں یا ان کے ہجوم میں خواتین بھی ساتھ ہوتی تھی، یعنی ان کا انٹریکشن جو ہے عورتوں کے ساتھ مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر جو ہے ان کی بات چیت جو ہے خواتین سے ہوتی تھی۔
हम अगर बाइबल को देखें, जो अनाजील हैं, चारों अनाजील में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जो है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाकयात में औरतों से बात करते हैं, औरत से बात करते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, औरतें जो थी खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द की हैसियत से, खुदावंद यीशु मसीह की गवाह की हैसियत से, और खुदावंद यीशु मसीह को जैसे वो तेल लगाया था, जो औरतें, दो वाकयात हैं, और दो वाकयात दिए गए हैं तेल लगाने के, जो खुदावंद यीशु मसीह को जो औरतें तेल लगाती हैं आकर पाँव धोती हैं। तो यानी कि इस तरह से हम ये देखते हैं कि औरतों का जो किरदार है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। अब हमने ये देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो औरत को किस नजर से देखते थे। खुदावंद यीशु मसीह जो है, मैंने जैसे कि आयत पढ़ी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है औरत को जो है हमेशा उसी बराबर लेवल पे देखते थे जिस तरह से वो मर्द को देखते थे। खास तौर पर हम ये एक बात जो काबिल गौर है, वो हम अगर देखें तो उसमें हमें नजर आता है कि खुदा यीशु मसीह जब भी औरत से बात करते हैं, वो बड़े ही एहतराम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोहब्बत से, शफकत से जो है वो औरत से बात करते हैं। जबकि वो ये बड़ी अच्छी बात है अगर हम ये कहें कि वो हमेशा औरत को जो है एक सच्ची और एक खरी जो है वो शागिर्दा के तौर पर खुदा यीशु मसीह औरत को देखते हैं। यानी कि औरत को कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब उस पर कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की थी उन्होंने, वो औरत के किरदार पर, औरत की बात पर, या औरत को उन्होंने डांटा हो या औरत को कुछ कहा हो। हाँ, मुख्तलिफ वाकयात में आगे हम जाके बात करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमेशा औरतों की जो है वो इज्जत करते थे, उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। जैसे कि लूका की इंजील में अगर हम ये देखें, यहाँ पर कुछ खवातीन का जिक्र है, उसमें यूं लिखा हुआ है कि थोड़ा अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता। वह शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और वो 12 उसके साथ थे, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और युआना हेरोदिस के दीवान खूजा की बीवी, और सोसाना, और बथेरी औरतें भी थी जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी। और यहाँ पर हमें एक बात काबिल गौर है कि लूका जो है वो अपनी अंजील में जो है वो खवातीन का खास तौर पर जिक्र करता है। वो मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगह पर खवातीन के नाम भी लिखता है, खवातीन का जिक्र बड़े ही खास तौर पर करता है, और खवातीन को वो एक खास मकाम अपनी अंजील में देता है, उन सारे वाकयात को। तो हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है, औरतें जो हजूम होता था, खुदा यीशु मसीह की जो तालीम सुनने के लिए आती थी, उनमें खवातीन भी शामिल होती थी, और खवातीन भी जो हैं वो आके खुदा यीशु मसीह की खिदमत करती थी मुख्तलिफ तरीके से। जैसे कि अभी मैंने बताया कि खुदा उसने लिखा कि वो माल से भी खिदमत करती थी। और आगे अगर हम ये देखें, अमाल की किताब में देखें, जब जो पहले जो कलीसिया थी तो उसमें खवातीन का बड़ा किरदार है कि खवातीन जो हैं वो अपने घरों को खाली करती थी, अपने घरों में बुलाया करती थी। हम सब जानते हैं कि शुरू में चर्चेस नहीं होते थे, बिल्डिंग्स नहीं होती थी, घरों में ही इबादत होती थी। तो वो घर अपना खोलती थी, अपना घर मुहैया करती थी। जैसे कि हम ये देखते हैं खुदा यीशु मसीह लाजर के घर जाया करते थे, और लाजर के घर में जो है वो मार्था जो है वो खाना बनाया करती थी खुदा यीशु मसीह के लिए, उन सारे लोगों के लिए, और खुदा यीशु मसीह वहां पर बैठ के कलाम करते थे। और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ वो लाजर, मार्था और मरियम ही नहीं होती थी। यकीनन जब खुदा यीशु मसीह उनके घर में आते थे, उनके घर में बैठते थे, तो और आसपास के उनके दोस्त, रिश्तेदार जितने भी थे, वो जरूर बैठते होंगे, वो जरूर आते होंगे, और वो वहां पर बैठ के खुदा यीशु मसीह वहां पर कलाम करते थे। हम ये बात इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब लाजर को खुदा यीशु मसीह ने जिंदा किया था, तो वो सारा हजूम, वो दोस्त, वो रिश्तेदार सारे उस वक्त मौजूद थे वहां पर उनके साथ। तो वो खुदा यीशु मसीह को पहले से ही जानते थे। इसका मतलब कि खुदा यीशु मसीह उनके घर में आना जाना था, उनका दोस्त था, और खुदा यीशु मसीह उनके घर में अक्सर कलाम जो है कलाम की मुनादी करते थे। यानी वो औरतें अपना घर जो है वो खोलती थी खुदा यीशु मसीह के लिए। तो इसी तरह से जो औरतें जो हैं उन्होंने एक बड़ा जो है वो किरदार अदा किया है कलीसिया में, खुदावंद की खिदमत में, और खुदा यीशु मसीह के साथ चलने में। जैसे मैंने कहा कि खुदा यीशु मसीह औरतों को जो है एक खालिस, एक सच्चे और खरे शागिर्द के तौर पर देखते हैं। और
अब हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की बहुत सी औरतों ने गवाही भी दी, जैसे कि खुदा यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो वो शागिर्दों को बताने के लिए गई। सबसे पहले औरतें ही थी जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को देखा, और फरिश्ते ने औरतों से ही बात की, वो शागिर्दों को बताने के लिए गई। फिर मतलब ये कि हम जब 120 की जमात में देखते हैं तो उसमें खवातीन भी शामिल होती हैं, खवातीन भी देखती हैं कि उसमें मौजूद हैं, और जिनको रूहुल कुद्स मिलता है। इसी तरह से हम सब अगर दुनियावी तौर पर देखें तो खवातीन को जो है वो हमेशा दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, यानी उसे कम तरजीह दी जाती है। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में हम मर्द और औरत दोनों शामिल थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो नेचुरली, जो फितरती तौर पर जो औरत का मकाम है, जो खुदा ने रखा है, वो उस नजर से औरत को देखते थे। अगर हम ये देखें कि खुदा यीशु मसीह जो हैं, अगर एक चीज काबिले गौर है, वो ये है कि खुदा यीशु मसीह एक मर्द की हैसियत से जमीन पर नहीं आए थे। वो एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर जो है वो जमीन पर आए थे और उन्होंने जिंदगी गुजारी थी। इसी तरह से वो खवातीन को भी एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर जो है वो ट्रीट करते हैं और वो उनको देखते हैं। एक ह्यूमन बीइंग बीइंग की हैसियत से वो उसको देखते हैं। एक औरत को जो है वो उसी तरह से इज्जत देते हैं जिस तरह से मर्द को इज्जत मिलती है या मकाम मिलता है। अगर हम ये देखें कि खुदा यीशु मसीह जो है किस तरह से जो है औरत के साथ बात करते हैं, उन्होंने कभी भी औरत के साथ इस तरह से बात मतलब नहीं की थी। ना उन्होंने कभी औरत की एज पर बात की थी, ना मतलब उसकी जो है उन्होंने किसी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात की थी। मतलब वो जो सामरी औरत है उसके बारे में बात की थी, वो हम बाद में जाके बात करते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब जो है इस चीज को हिट नहीं किया था। कभी ये जैसे होता है ना, कुछ लोग मतलब एवे ही मतलब किसी की मतलब एज को लेके एवे बात कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह इन सारी चीजों से पीछे सिर्फ अगर वो देखते थे तो इस बात को देखते थे कि इस औरत का खुदा के साथ कितना रिलेशन है, खुदा के साथ इसका ताल्लुक कितना है। वो सिर्फ इस नजर से देखते थे। और हम अगर देखें कि खुदा यीशु मसीह ने हमेशा औरतों के साथ डायरेक्ट बात की। अगर वो ये इज्जत औरतों को ना देते या औरत का वो मकाम वो ना देते तो कभी भी औरत से बात ना करते। जैसे कि हम सब ये देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील में जब वो खुदा यीशु मसीह सामरी औरत से बात कर रहे होते हैं, तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि ये औरत से क्यों बात कर रहा है। क्योंकि यहूदी जो सोसाइटी है, यहूदी जो माशरा है, उसमें औरत को कम तरीन समझा जाता है, और उसमें औरत से बात करना वो हेच समझते थे। तो खुदा यीशु मसीह जो है वो डायरेक्टली उससे बात कर रहे हैं, सामरी औरत से बात कर रहे हैं। सामरी औरत से किस तरह से उन्होंने बात की हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से उसके साथ बात की है खुदा यीशु मसीह ने। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो जिना के वक्त जो औरत पकड़ी गई है, तो उसको लोग लेकर आते हैं। तो खुदा यीशु मसीह उसके साथ बड़ी ही आजादी के साथ बात करते हैं। यानी खुदा यीशु मसीह ने कोई ऐसा उसमें कुछ नहीं किया। मतलब हम सब ये जानते हैं कि हमारे गुनाह या हमारी जो भी चीजें हैं वो खुदा से छुपी हुई नहीं है। खुदा यीशु मसीह जानते थे कि ये औरत जो है वो जिनाकार है। खुदा यीशु मसीह जानते थे कि ये इस औरत ने गुनाह किया है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उस औरत के साथ किस तरह से बात की, बड़े ही अच्छे तरीके से उससे बात की। और आगे हम अगर देखें कि वो नाइन की बेवा जो है खुदा यीशु मसीह को किस तरह से उस पर तरस आकर उसके बेटे को खुदा यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। वो औरत जो कुबड़ी थी, जो जिसको जो है वो औरत जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी, उसको किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने बुलाया और उसको खुदा यीशु मसीह ने जो है वो ठीक किया। ये लूका की इंजील उसके 13 बाब और उसकी 12 आयत में हम पढ़ते हैं। और उस औरत को खुदा यीशु मसीह जो है इब्राहिम की बेटी के नाम से कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इब्राहिम की बेटी वो किस तरह से है, वो रूहानी तौर पर, यानी अब वो उस ब्लेसिंग में आ गई। खुदा यीशु मसीह के वसीले से, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से वो आजाद हो गई और रूहानी तौर पर अब वो इब्राहिम की बेटी बन गई। और अगर हम ये देखें कि जिस औरत को 12 बरस से खून जारी था,
اور وہ ڈرتی تھی، وہ کانپتی تھی۔ تو خدا یسوع مسیح اس کو کیا کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ جا، سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یعنی وہ پیار، محبت اور وہ شفقت جو ہے وہ ہمیں خدا یسوع مسیح کے اس میں سے نظر آتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ لوکا کے انجیل 11 باب 27 سے 28 آیت میں دیکھیں کہ وہ عورت جو ہجوم سے یسوع مسیح کو پکارتی ہے، اور وہ یہ بات کرتی ہے کہ مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، اور مبارک ہے وہ رحم جس میں تو پڑا۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس کو کیا جواب دیتے ہیں کہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ مطلب کہ خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں رستے میں، اور عورت نے جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے، ہجوم میں سے کھڑے ہو کے خدا یسوع مسیح کو اس نے آواز لگا کر کہا کہ مبارک ہے وہ رحم جس میں تو پڑا، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ لیکن خدا یسوع مسیح اس کو پھر جواب دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں عورت کو خاص توجہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ انہوں نے اس عورت کو اگنور نہیں کیا، جس کو 18 برس سے جو کبڑی تھی، خدا یسوع سے اس کو اگنور نہیں کیا۔ اگر ہم یہ واقعہ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا یسوع نے جب اس کو دیکھا کہ وہ ہیکل میں آئی ہے، خدا یسوع مسیح بھی وہاں پر موجود تھے، تو خدا یسوع مسیح اس کو خود اپنے پاس بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ میرے پاس، اور خدا یسوع مسیح نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ سیدھی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے وہ جو ہجوم میں جس کو 12 برس کا خون جس کا جاری تھا، خدا یسوع مسیح سے وہ ڈرتی تھی، کانپتی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا میرے ساتھ۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اے بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، سلامت چلی جا۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ لوکا کے انجیل 23 باب اس کے 27-31 میں اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کا ایک بڑا ہی ہجوم جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جاتا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ رو رہی ہیں جب خدا یسوع مسیح صلیب اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح ان سے کیا کہتے ہیں کہ اے عورتوں، مجھ پر نہیں بلکہ اپنے بچوں پر رو۔ یعنی ہمیں جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ہی پیار اور شفقت سے جو ہے وہ عورتوں سے بات کرتے ہیں، عورت کو ایک مقام دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ عورتیں جو گنہگار تھیں، جو گناہ میں تھیں، خدا یسوع مسیح جیسے کہ سامری عورت ہے، سامری عورت کو خدا یسوع مسیح نے اس کے گناہ بتا دیے۔ خدا یسوع مسیح نے جو زنا میں عورت پکڑی گئی تھی، خدا یسوع مسیح نے اس سے بھی ایسے ڈائریکٹلی بات کی۔ اور ایک چیز ہمیں جو قابل غور ہے وہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں عورت کو، ان ساری خواتین کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گی تو تم اپنے فیل کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یعنی کہ احساس ذمہ داری جو ہے عورت کے اندر بھی پیدا کیا گیا کہ اگر وہ گناہ کرے گی تو وہ اس کی ذمہ دار خود ہوگی۔ تو جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے ان کے گناہ تو معاف کر دیے، لیکن خدا یسوع مسیح نے ان کو یہ بات بھی باور کرائی کہ آئندہ گناہ نہیں کرنا، جا آئندہ گناہ نہ کرنا، جا سلامت چلی جا۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اگر تو گناہ کرے گی تو پھر یقیناً تو اس کی ذمہ دار خود ہوگی۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ہمیں، عورت کو جو ہے مکمل اسی طرح سے جس طرح سے مرد کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ان کو بھی اسی طرح سے توبہ کی ضرورت ہے، ان کو بھی اسی طرح سے اپنے اس پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے عورت کے لیے بھی جو خدا کی بادشاہی ہے اسی طرح سے تیار کی گئی ہے جس طرح سے مرد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس طرح مرد اپنے کام کال آف فیل کا ذمہ دار ہے، اسی طرح سے عورت بھی اپنے کال آف فیل کی ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے عورت بھی جو ہے اسی کو وہ مقام اور درجہ جو ہے خدا کی بادشاہی میں ملا ہے جتنا کہ مرد کو ملا ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے ہمیشہ سے انہوں نے عورت کے ساتھ ایک ویلیویبل اس کو سمجھا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو کوئی حقیر چیز نہیں سمجھا، خدا یسوع مسیح نے اس کو عزت اور وقار اور کے ساتھ اس کو جانا ہے، پہچانا ہے، اس کو ایک مقام دیا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح جو ہے عورتوں کی جو رفاقت وہ رکھتی تھی، جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ وہ چلتی تھی، خدا یسوع مسیح کے لیے اپنا گھر کھولتی تھی، خدا یسوع مسیح کے لیے دعائیں کرتی تھی، یا مطلب منسٹری کے لیے دعائیں کرتی تھی، رفاقت رکھتی تھی، اور ان کی جو جذبات ہوتے، جو فیلنگز ہوتی تھی جو خدا یسوع مسیح کے لیے، جو وہ مالی امداد کرتی تھی، جو گواہی وہ دیتی تھی، ان ساری چیزوں کو خدا یسوع مسیح بہت ہی ویلیو کرتے تھے اور بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب، انہوں نے جتنا مرد کے لیے خدا کی بادشاہی کا پیغام دیا، اتنا عورت کو بھی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا پیغام دیا۔ اتنا ہی انہوں نے عورت کو بھی اتنا ہی آزاد کیا
जितना उन्होंने मर्द को गुनाह से आजाद किया, मर्द को तारीकी से निकाला, उतना उन्होंने औरत को भी तारीकी से निकाला और उसे बादशाही में दाखिल होने के लिए उन्होंने उसको हौसला अफजाई दी, उसको मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से जो है उन्होंने उसको उसमें दाखिल होने के लिए उसको दावत दी। और यहाँ पर मेरे अजीजों, हमें जो है खास तौर पर ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जो लोग ये बात करते हैं कि औरत मिनिस्ट्री नहीं कर सकती, उनके लिए ये बात ज़रूरी है जान लेना कि खुदा यीशु मसीह औरत की मिनिस्ट्री को भी उसी नज़र से देखते हैं, उसी तरह से कदर करते हैं, जिस तरह से कि मर्द की मिनिस्ट्री को करते हैं। बेशक सबकी खिदमतें तरह-तरह की हैं, अपनी-अपनी खिदमत अपनी जगह पर है। तो मेरे अजीजों, हम मतलब हम मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज हमारे घर में प्रेयर मीटिंग हमने रखी हुई है। हम फर्स्ट सैटरडे को प्रेयर मीटिंग करते हैं। तो अभी मतलब मैं सुबह से उठ के मैंने ये सारा सेटअप कर लिया है कि भाई आज हमारे घर सारी गैदरिंग होगी, हमने प्रेयर मीटिंग करनी है। और मैं मतलब सुबह से लेके शाम तक जो है मैं सारी तैयारी करूंगी, खाना बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी कि सारे गेस्ट आने हैं। मैं अकेली लगी होती हूँ क्योंकि सब बिजी होते हैं, मैं अकेली होती हूँ। लेकिन क्या खुदा इन चीजों को वैल्यू करता है, हमारी छोटी छोटी चीजों को भी वैल्यू करता है। खुदा जो है वो देखता है कि हम किस तरह से शौक के साथ जो है खुदावन के लिए एक मजबा तैयार करते हैं, खुदावन के लिए हम अपना घर खोलते हैं, हमारे घर में लोग आते हैं। और जब मैं यहाँ पर करती हूँ, हर महीने हमारे घर में मीटिंग होती है और खास तौर पर अब जो है सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू किया कि वो खाना लेकर आते हैं, कोई खाना ले आते हैं अपनी मर्जी से। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। कोई मतलब स्नैक्स लेके आते हैं, कोई मतलब जिस तरह से जैसे जो भी जिसको भी सूट करता है वो ले आते हैं। लेकिन जो मेन खाना है वो मैं ही बनाती हूँ सबके लिए, बेशक 20 लोग हों, 25 लोग हों, जितने भी लोग हों, मैं उनके लिए खाना अरेंज करके रखती हूँ। और यकीन जानिए कि उसमें खुदावंद इतनी बरकत देता है कि बहुत ज्यादा खाना बच भी जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेकिन मुझे बहुत से हमारे जो मेंबर्स हैं वो ये भी बात करते हैं कि सिस्टर आप मतलब अकेली क्यों करती हैं, आप बांट दिया करें, आप दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया करें, आप इस तरह से कर लिया करें। उस तरह से मैं कहती हूँ नहीं, मैं किसी को नहीं कह सकती, किसी की अपनी खुशी है जो जितना करना चाहता है। लेकिन मैं ये सुनाने के लिए बात नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि इसी तरह से उस ज़माने में जब खुदावंद यीशु मसीह थे, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, वो अपना घर इसी तरह से खोलती थीं। खुदावंद यीशु मसीह आते थे। आज ख़ादिमीन हमारे घर में आते हैं, खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। उस वक़्त खुद खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, वो कलाम सुनाया करते थे। और ख़वातीन यकीनन मैं जानती हूँ कि बेशक यहाँ पे ज़िक्र नहीं है कलाम में, हमें उनका नहीं मिलता, लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे घर में अगर मेहमान आता है तो हम उसके लिए, जैसे उस जमाने में मशक में पानी लाया जाता था, दूर से पानी लेकर आते थे, किस तरह से वो पानी का अरेंज करती थी, किस तरह से वो लकड़ियां जला के खाना बनाती थी, किस तरह से वो सारा काम करती थी। खुदा यीशु मसीह ये सारी चीजें उस वक्त भी देखते थे कि देखो किस तरह से भाग-भाग के ये काम करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मार्था जो है खुदा यीशु से शिकायत भी करती है कि देखो मुझे इसने खिदमत करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, सारे घर के कामों के लिए इसने मुझे अकेला छोड़ दिया, ये मेरी मदद नहीं कर रही, मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही। इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ अरेंज कर रही थी और अब कर के वो थक गई थी, जिसकी वजह से वो खुदा यीशु मसीह से शिकायत करती है। और खुदा यीशु मसीह उसको देख के हँसते हैं, कि उसको कहते हैं कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। तो मेरे अजीजों, हम आज जो खुदावंद के लिए कुछ भी करते हैं, जो खवातीन खास तौर पर जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह की नजर में बड़ा ही वैल्यूएबल है। खुदावंद यीशु मसीह उसको वैल्यू करते हैं। तो इसलिए औरत मर्द से कम नहीं है। खुदावंद की नजर में, खुदावंद यीशु मसीह की नजर में औरत उतनी ही वैल्यूएबल है। खुदा की बादशाही में औरत का मकाम उतना ही बड़ा है जितना कि मर्द के लिए है। इसलिए औरत को हमेशा ये बात याद रखने की जरूरत है कि खुदा की बादशाही पहले है, बाकी चीजें बाद में हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन।